So now let's start with the C4 pathway. Detail of this pathway was found by the two scientists, Hatch and Slack. That's why also known as Hatch and Slack pathway. This pathway is also known as cooperative photosynthesis. Now, why known as cooperative photosynthesis? Because this pathway will occur with the help of two cells, that is bundle sheath cells and mesophyll cells. So now what are these cells? I will be discussing in detail in this. Now I will be discussing in detail. So why it is known as cooperative photosynthesis? Because it will occur with the help of the two types of the cells, that is bundle sheath cells and mesophyll cells, which I will be discussing in detail right now. This pathway, it is known as also dicarboxylic acid cycle. Now why it is so? Because इस pathway के अंदर जो intermediates form होंगे, they are organic compounds which contain two carboxylic group, so known as dicarboxylic acid cycle. Now for the first time, Koschuk in sugarcane, what he observed that after the carbon dioxide fixation के बाद जो first product form हो रहा है, that is not a 3 carbon compound. Instead of the 3 carbon compound, it is a 4 carbon compound, which is a dicarboxylic acid. Dicarboxylic acid, that is OAA, oxaloacetic acid. So this is the formula, structural formula for the oxaloacetic acid. So you can see that this organic compound, it possesses two acid group. So it is after the carbon dioxide fixation, the 4 carbon compound which is formed, that is oxaloacetic acid, it is a dicarboxylic acid. So this was the finding of Koschuk. Later on, the detailed process, how this carbon dioxide fixation occur, the complete pathway was discovered by the Hatch and Slack in several tropical plants. So in the several tropical plants, this pathway, it was discovered by the scientists Hatch and Slack. अब ये जो pathway है, it is seen in 18 families of angiosperms. 18 families of angiosperms. यहाँ पर जो members present है, these members they show C4 pathway. C3 pathway show करने वाले भी species हैं, and C4 also are there, and 1500 species of the angiosperms they show this pathway. So जो plants ये pathway show करेंगे, these plants you can call them as C4 plants. और ये जो species जो C4 pathway show कर रही हैं, these species they are both monocots as well as dicots. So let's write the name of the few plants. So to learn the name of the plants which show C4 pathway, I'm writing one code word here, that is MAPS. For the M, the C4 plant is maize. Now this one is amaranthus. Next, that is Pennisetum, right? Then sorghum, और जो सबसे productive C4 plant है, that is sugarcane. So you have to keep this in mind here, that rice and wheat, they are C3 plant and maize is a C4 plant. अब ये जो C4 plants हैं, they show a special type of leaf anatomy. That leaf anatomy is known as Kranz anatomy. So let's study what is this Kranz anatomy here.
So here I will be making vertical section of C4 plant leaf to represent Cran's anatomy. So in the leaf, this is upper epidermis. This one is lower epidermis. And here I am showing vascular bundle. This is vascular bundle on the upper side, that is adaxial side, you know that very well. Here I am showing xylem. Yes? This one is representing xylem. And here, this is phloem. Now, around the vascular bundle, there is presence of layer of cells. This layer of cell is known as bundle sheath. तो vascular bundle के आसपास layer of cell present है, that is bundle sheath cells. So I am making here bundle sheath cells which are of large size. So you can see here large size. The bundle sheath cells are there and they possess chloroplast. Yes, they are chlorenchymatous. तो vascular bundle के आसपास ये जो मैंने यहाँ पर cells बनाए हैं, these are bundle sheath cells. Right? अब bundle sheath cells के आसपास mesophil cells हैं, and the mesophil cells, they are again arranged in concentric manner. Yes, so these are mesophil cells, and the mesophil cells you can see they are also arranged in concentric manner. तो यहाँ पर देखिए कैसा अरेंजमेंट लग रहा है, क्राउन जैसा अरेंजमेंट लग रहा है, रीथ जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ crown like structure. This concentric arrangement which is present in the leaf of C4 plants, it is known as Cran's anatomy. Right? तो ये वाले जो बड़े वाले सेल दिखाए हैं उनका क्या नाम है, बंडल शीथ सेल्स, और ये बाहर जो सेल्स दिखाए हैं इनका नाम है मेसोफिल सेल्स. बोथ ऑफ दीज सेल्स दे आर chlorenchymatous. And with the cooperation of these two cells, now the photosynthesis will occur in the C4 plants. That's why this pathway it is also known as cooperative photosynthesis. So first of all, I will be writing the major differences between the bundle sheath cells and the mesophil cells. So let's cite some important differences between the MSC, that is mesophil cells, BSC, that is the bundle sheath cells. अब mesophil cells के अंदर present है granule chloroplast, and in the bundle sheath cells there is presence of agranule chloroplast. तो it means कि यहाँ पर C4 प्लांट्स के अंदर दो तरह के क्लोरोप्लास्ट लीफ के अंदर प्रेजेंट है. सो मीन्स द C4 प्लांट्स दे शो डायमॉर्फिज्म विद रिस्पेक्ट टू द क्लोरोप्लास्ट. टू टाइप्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट दे आर प्रेजेंट. अब ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट मीन्स ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा. Yes, this structure, you know that this region is known as non-appressed region and this one is appressed region. Non-appressed region में present है photosystem 1, appressed region में present है photosystem 2. But in the bundle sheath cells, agranule chloroplast है. agranule chloroplast है, तो इसका मतलब अब स्टैकिंग नहीं होगी थाइलेकॉइड्स की. थाइलेकॉइड्स की स्टैकिंग नहीं होगी, तो इट मीन्स नाउ देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओनली नॉन एप्रेस्ड रीजन. नॉन एप्रेस्ड रीजन तो सिर्फ कौन सा फोटोसिस्टम होगा, फोटोसिस्टम 1.
मीजोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिस्टम 1 भी है और 2 भी है, तो इसका मतलब यहां पर नॉन साइक्लिक ईटीएस भी हो सकता है एंड साइक्लिक ईटीएस कैन ऑल्सो अकर, पर यहां पर सिर्फ फोटोसिस्टम 1 है, सो ओनली साइक्लिक ईटीएस विल अकर इन द बंडल शीथ सेल्स. नॉन साइक्लिक ईटीएस के अंदर द इलेक्ट्रॉन डोनर इज वाटर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर इज रिक्वायर्ड. तो इसका मतलब मीजोफिल सेल्स के अंदर जब लाइट रिएक्शन होगा, देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ वाटर. आफ्टर द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर देयर इज रिलीज ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन रिलीज होगा, पर यहां पर तो तुम देख रहे हो सिर्फ कौन सा पाथ पे है, साइक्लिक ईटीएस. तो वाटर ब्रेक डाउन एब्सेंट, ऑक्सीजन रिलीज दैट इज एब्सेंट है. मीजोफिल सेल्स के अंदर रुबिस्को एंजाइम, दिस कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम इज एब्सेंट. यहां पर ये एंजाइम प्रेजेंट है. अब यहां पर रुबिस्को एंजाइम एब्सेंट है. अब रुबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के बाद शुगर फॉर्म करता है, तो इट मींस इन सेल्स के अंदर स्टार्च की फॉर्मेशन एब्सेंट होगी. स्टार्च ग्रेन्स दे आर एब्सेंट. इन सेल्स के अंदर रुबिस्को प्रेजेंट है विच विल फिक्स द कार्बन डाइऑक्साइड. आफ्टर फिक्सिंग द कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज पॉलीमराइजेशन के बाद फॉर्म करेगा स्टार्च, फॉर्मिंग स्टार्च ग्रेन्स. यू हैव टू कीप दिस इन माइंड हियर कि मीजोफिल सेल्स के अंदर रुबिस्को एंजाइम एब्सेंट है, बट वन कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम विच इज प्रेजेंट हियर, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सिंग एंजाइम विच इज प्रेजेंट हियर, दैट इज पेप्को, दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम. This enzyme is present. In the case of the bundle sheath cells, Rubisco present है and this Pepco enzyme, this is absent. तो ये बात क्लियर हो रही है. मीजोफिल सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए प्रेजेंट है पेप्को, रुबिस्को इज एब्सेंट, और बंडल शीट सेल्स के अंदर रुबिस्को प्रेजेंट है एंड द पेप्को इज एब्सेंट. सो द टू डिफरेंट कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम्स दे आर प्रेजेंट इन द टू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स. दे आर प्रेजेंट इन द टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द C4 प्लांट्स. इसके अलावा C4 प्लांट्स के अंदर और फीचर देखिए कौन से है बंडल शीट सेल्स के साथ एसोसिएटेड. बंडल शीट सेल्स दे आर ऑफ लार्ज साइज, थिक वॉल, इंटरसेलुलर स्पेसेस दे आर एब्सेंट. सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट है. थिक वॉल होने की वजह से दे आर इम्परवियस टू द गैसियस एक्सचेंज. राइट नाउ अलॉन्ग विथ दैट, ये जो बंडल शीट सेल्स हैं ये वैस्कुलर बंडल के आसपास शीट बना रहे हैं. तो ये मत सोचिए कि शीट सिर्फ वन लेयर ऑफ सेल्स की होगी. द शीट कैन कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल. Along with that, bundle sheath cells के अंदर present है large number of chloroplasts. बहुत सारे chloroplasts present है as compared to the mesophyll cells, and the size of chloroplast is also large as compared to the MSC. So this was about the important differences between the mesophyll cells and bundle sheath cells. अब यहाँ पर हम स्टडी करेंगे इन सेल्स की कॉपरेशन की वजह से C4 प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म करेंगे. So let's start with the C4 pathway. So here I am showing
the mesophyll and bundle sheath cell. Yes, तो यहाँ पर ये Cran's anatomy के मैं cells बना रही हूँ. So this one is bundle sheath cells. तो यहाँ पर ये दो सेल्स के बीच में ये पोर बना रहे हैं जो दैट इज प्लाज्मोडेस्माटिक कनेक्शन. राइट, तो ये जो सेल है दैट इज mesophyll cells. Cell बनाया that is bundle sheath cell. Now see what will happen here. Atmosphere से जो carbon dioxide है that will enter the mesophyll cell. Yes, through these stomata, the carbon dioxide will enter the mesophyll cell, and this carbon dioxide, it will join with the water and convert it into the carbonic acid, and this carbonic acid, it is accepted by the phosphoenol pyruvate, which is a 3-carbon compound. Yes, this 3-carbon compound, it will accept carbon dioxide. 3-कार्बन कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद फॉर्म होगा 4-कार्बन एसिड. यस, दैट इज अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज ऑक्सालो एसिटिक एसिड. दिस इज अ C4 acid. Right? So this is first step of the C4 pathway. This first step is फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और इस प्रोसेस को, इस स्टेप को परफॉर्म करने के लिए जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट है दैट इज पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम, कैन ऑल्सो बी रिटन एज पेपकेस. You know that in the mesophyll cell the rubisco is absent. The carboxylating enzyme which is present that is pepcase. अब ये oxaloacetic acid है. Now this is converted into the malic acid or it is converted into the aspartic acid. Oxaloacetic acid, either it is converted into the malic acid or aspartic acid. तो यहाँ पर हम malic acid बना देते हैं. So this is a C4 acid. C4 oxaloacetic acid से C4 malic acid बनेगा, and this is formed through the process of reduction. Yes, the step which is involved here. The process which is involved here, that is reduction, and for the purpose of the reduction, there is utilization of NADPH. NADPH यूज्ड होने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा NADP प्लस के अंदर, और ये जो सेकेंड स्टेप है यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट एंजाइम इज MDH, दैट इज मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम. अब ये जो C4 एसिड है इसका ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम मेसोफिल सेल टू दी बंडल शीथ सेल्स. यस, मेसोफिल सेल से अब ये ट्रांसफर हो जाएगा बंडल शीथ सेल्स के अंदर थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा. Transported through the plasmodesmata, malic acid.
अब बंडल शीट सेल्स के अंदर ये जो 4 कार्बन एसिड है, इट विल अंडरगो decarboxylation reaction. Yes, so now it will undergo decarboxylation reaction, means कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाएगी. कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल के साथ साथ देयर इज ऑल्सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन. हाइड्रोजन रिमूव होगा, दैट हाइड्रोजन इज पिक्ड अप बाय NADP प्लस and it is converted into the NADPH. So you can see here कि एक NADPH यहां पर यूज करा और एक NADPH यहां पर फॉर्म करा, so the net effect is 0. 4 कार्बन एसिड में से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई, so it means now the 4 carbon compound, it is converted into a 3 carbon compound. So now there is formation of 3 carbon acid, and this 3 carbon acid which is formed, that is pyruvic acid. And the enzyme which is involved at this step, इस step के ऊपर जो enzyme involved है, that enzyme is malic enzyme. अब कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर जो रिलीज हुई है, now it is again fixed. Yes, please say this here. एक बार कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हुआ है यहां, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा यहां, अब दोबारा यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा. बट यू नो दैट नाउ इन दी सेल्स द एंजाइम विच इज प्रेजेंट, दैट इज रुबिस्को. सो रुबिस्को विल फिक्स दिस कार्बन डाइऑक्साइड through the C3 cycle, and after the fixation result in the formation of sugars. So very important point to note down here. कोई भी प्लांट है, चाहे C3 है, चाहे C4 है, चाहे कैम्प प्लांट है, इन सारे प्लांट्स के अंदर शुगर फॉर्मेशन के लिए जो पाथवे इन्वॉल्व होगा, दैट इज C3 पाथवे. So it means we can simply say that C3 pathway, it is a universal pathway जो सारे plants के अंदर present होगा, whether it is C3, C4 or CAMP plants. So this point is really very important. यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं C4 pathway, but for the purpose of the formation of sugar, which pathway will help here? The universally occurring pathway, that is C3 one. So I'm repeating these steps over here. I'm repeating these steps here. यहां पर हुआ फिक्सेशन पहली बार, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? प्राइमरी फिक्सेशन, राइट? और प्राइमरी फिक्सेशन के अंदर प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज पेप, राइट? और फिक्सेशन के बाद जो फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, that is a 4 carbon compound, 4 carbon acid. Then ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो इस कंपाउंड ने पिक कर लिया, now it is transported here in the mesophyll cells through these reactions. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिलीज होगी, so it means now it is decarboxylation. कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुई वो दोबारा फिक्स होगी. Now by the Rubisco, yes, now it is refixation, recarboxylation. पर जब Rubisco कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा, so now the acceptor of the carbon dioxide, it is not a 3 carbon compound, it is a 5 carbon compound, that is RUBP. और यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा फिक्सेशन के बाद, दैट इज नॉट अ 4 कार्बन कंपाउंड, नाउ इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड. तो ये बात समझ आ रही है? फर्स्ट टाइम द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज पेप,
and the product which is formed, that is a 4 carbon compound. दूसरी बार जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी, so now the acceptor is a 5 carbon compound, that is RUBP, और जो product बनेगा that is a 3 carbon compound, that is PGA. So I will be writing these two main differences between the first carboxylation and second carboxylation. First carboxylation is with the help of pepcase. Second carboxylation is with the help of Rupesco. फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन हो रहा है MSC के अंदर और ये हो रहा है BSC के अंदर. यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है? द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, दैट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज पेप. यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है दैट इज 5 कार्बन कंपाउंड, दैट इज RUPP. यस, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के बाद यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? दैट इज C4 एसिड, दैट इज ऑक्सालो एसिटिक एसिड. और यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज C3 एसिड विच इज PGA. तो ये जो 2 कार्बोक्सिलेशन हो रहे हैं C4 प्लांट्स के अंदर, दैट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ लास्ट थिंग, नाउ व्हाट विल हैपन? ये जो पारुविक एसिड है 3 कार्बन कंपाउंड, नाउ इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द बंडल शीथ सेल्स टू द मेसोफिल सेल्स. अब इसका ट्रांसपोर्ट होगा, right, to the mesophyll cells. So this is a 3 carbon acid. This 3 carbon acid, now lastly it will regenerate PEP, just completing the Hatch and Slack pathway. तो ये जो पारुविक एसिड है दोबारा इससे अब क्या बन जाएगा? PEP फॉर्म हो जाएगा. So now the enzyme which is involved at this step, that is phosphopyruvic dikinase. So you can see here pyruvic acid से बनाना है phosphoenol pyruvate. तो यहाँ पर phosphate का utilization होगा and that phosphate is provided by the ATP. But now the ATP here it is converted into the AMP. अब ट्राइफॉस्फेट से क्या बन गया? मोनोफॉस्फेट. अब actually we will say that at this step there is requirement of 2 ATPs. Why 2 ATPs? Because अगर AMP से दोबारा ATP बनाना हो तो double the energy is required. बिकॉज अब ट्राइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट में नहीं कन्वर्ट हुआ, किसमें कन्वर्ट हुआ? मोनोफॉस्फेट में. तो डबल द एनर्जी इज रिक्वायर्ड. दैट्स व्हाई वी विल से एट दिस स्टेप ऑफ द हैच एंड स्लैग पाथवे देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 2 ATPs. This point is clear. Now I would like to tell you about this enzyme, that this enzyme, one, it is cold sensitive. This is sensitive to low temperature, and second, for the activity of this enzyme there is requirement of sodium ions. तो ये जो एंजाइम है वो कोल्ड सेंसिटिव है, लो टेम्परेचर सेंसिटिव है. दैट्स व्हाई ये जो C4 प्लांट्स है, दिस इज मेनली दिस C4 पाथवे, इट इज शोन बाय द प्लांट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन. दैट्स फाइन. अब हमने यहां पर देखनी है व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पाथवे. इस पाथवे की एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है? तो एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए पहले देखते हैं हाउ मेनी ATP एंड हाउ मेनी NADPH दे आर रिक्वायर्ड इन द C4 प्लांट्स. तो 2 ATP यहां पर यूज हुए एंड अलोंग विद दिस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन से शुगर फॉर्म हुई. यू नो दैट फॉर 1 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हियर इन दिस पाथवे देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 3 ATP and 2 NADPH.
तो 3 ATP 2 NADPH यहां यूज होंगे और 2 ATP यहां यूज होंगे. सो इट मीन्स फॉर 1 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन now 5 ATP and 2 NADPH they are required. तो इसका मतलब C3 प्लांट से 2 ATP यहां पर एडिशनल यूज हुए. So we can say that in the C4 plants for 6 carbon dioxide fixation or 1 glucose molecule formation there is requirement of 5 into 6 30 ATP and 2 into 6 that is 12 NADPH. तो एक ग्लूकोज को बनाने के लिए यूज होंगे 30 ATP and 12 NADPH in C4 plants. And if we compare it with the C3, we have discussed this. There's requirement of 18 ATP and 12 NADPH. तो इसका मतलब C4 प्लांट्स के अंदर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन दैट इज मोर. That is more. How many ATPs they are more required for the glucose formation? That is 12 ATP. This point is clear to all of you? ना ये जो पाथवे है ये एक इवॉल्व्ड पाथवे है. यस, दिस इज इवॉल्व्ड पाथवे देन दी C3-1. और ये जो पाथवे है इसके बड़े सारे सिग्निफिकेंस है, बहुत सारी इंपॉर्टेंस है. तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंस इस पाथवे के साथ जुड़ी हुई है अब वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे. First one, that the C4 plants they have the ability to tolerate high temperature stress. They can tolerate the high temperature condition. You know that high temperature condition के अंदर रुबिस्को की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए इंक्रीज हो जाती है and it results in a wasteful process that is photorespiration, right? But in the case of the C4 plants, this wasteful process, the photorespiration is absent. तो C4 प्लांट्स के अंदर फोटोरेस्पिरेशन कैसे एब्सेंट है यहां पर हम डिस्कस करेंगे. सो यू प्लीज सी हियर कि ये बंडल शीट सेल है, इसके अंदर प्रेजेंट है रुबिस्को जो ऑक्सीजनेज का काम कर सकता है. पर यहां पर तो कॉन्टिन्यूअस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ मैलिक एसिड. मैलिक एसिड की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है. तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है. अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है सो रुबिस्को कैन नॉट एक्ट लाइक ऑक्सीजनेज, तो फोटोरेस्पिरेशन नहीं होगा. सो वन रीजन इज जहां पर रुबिस्को प्रेजेंट है देयर हाई carbon dioxide concentration is maintained. How? Due to the continuous breakdown of malic acid. Along with that, यहां पर रुबिस्को प्रेजेंट है इस सेल के अंदर, पर इस सेल के अंदर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं हो रहा है. यस, इस सेल के अंदर ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा है, ये मैंने अभी आपको बताया. और ये जो मीजोफिल सेल्स है यहां पर नॉन साइक्लिक ETS होगा और ऑक्सीजन रिलीज होगा. तो रुबिस्को प्रेजेंट है इस सेल के अंदर और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है इस सेल के अंदर. सो इट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ द रुबिस्को एंड द ऑक्सीजन रिलीज इन 2 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, जिसकी वजह से इन दोनों का इंटरैक्शन कम होगा एंड रुबिस्को कैन नॉट एक्ट लाइक दी oxygenase enzyme. So the second reason that Rubisco is present in bundle sheath cell and oxygen release हो रही है MSC के अंदर. तो 2 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर ये प्रोसेसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से रुबिस्को और ऑक्सीजन का इंटरैक्शन नहीं होगा एंड रुबिस्को कैन नॉट एक्ट लाइक ऑक्सीजनेज व्हिच विल इनहिबिट द फोटोरेस्पिरेशन.
फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है. अगर ये वेस्टफुल प्रोसेस एब्सेंट होगा, सो द प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस प्लांट्स विल बी हायर एज कंपेयर टू दी C3 plants. As compared to the C3 plants, because one of the wasteful process, that is photorespiration, is absent. Second, these plants, they can tolerate carbon dioxide stress. अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन एनवायरमेंट के अंदर कम है, ये प्लांट तब भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. हाउ? बिकॉज इनके पास रुबिस्को से भी एक स्ट्रॉन्गर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सिंग एंजाइम प्रेजेंट है. दैट स्ट्रॉन्गर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सिंग एंजाइम, दैट इज पेपकेस. यू नो कि पेपकेस की एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू दी रुबिस्को. तो जिसकी वजह से ये कम कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन के ऊपर भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं. इवन इफ द स्टोमेटा इज क्लोज्ड, अगर स्टोमेटा बंद है, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रही है प्लांट में, दे कैन फिक्स द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिलीज्ड इन रेस्पिरेशन. ये बात समझ आ रही है आपको? स्टोमेटा बंद, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड सेल में नहीं आ रही है, पर रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये प्लांट फिक्स कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग एंजाइम दैन रुबिस्को, दैट इज पेपकेस. इसके साथ साथ दे ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू टॉलरेट वाटर स्ट्रेस. यस, लेस वाटर कंडीशन के अंदर भी काम कर सकते हैं. कैसे आप काम कर सकते हैं लेस वाटर कंडीशन के अंदर? इनके अंदर जो लीफ में एनाटमी है, दैट इज क्रांस एनाटमी. अब जो क्रांस एनाटमी है उसमें टाइटली पैक्ड सेल्स हैं. तो अगर टाइटली पैक्ड सेल्स हैं, सो लॉस ऑफ वाटर विल रिड्यूस. लॉस ऑफ वाटर रिड्यूस होगा तो इसका ना प्लांट की वाटर यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. पानी का लॉस प्लांट में से कम हो रहा है, तो इट मीन्स जो प्लांट है वो लेस वाटर कंसंट्रेशन कोर्स में भी काम कर सकता है. सो इट मीन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्रांस एनाटमी, दे हैव द एबिलिटी टू सर्वाइव इवन द वाटर स्ट्रेस कंडीशन. Next one, they have the ability to tolerate the salt stress. High salt concentration भी ये सॉइल के अंदर टॉलरेट कर सकते हैं. अब देखिए कैसे कर सकते हैं. सॉइल के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो सॉल्ट कंसंट्रेशन अगर सॉइल में ज्यादा होगी तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा. तो अब ये सॉइल से वाटर कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? ये जो प्लांट्स हैं इनके अंदर ये पाथवे वर्क कर रहा है. इस पाथवे से बन रहे हैं एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड की वजह से इनके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, मतलब कि वाटर पोटेंशियल कम. वाटर पोटेंशियल सॉइल से भी कम हो जाएगा. देखो कैसे कि सपोज करो सॉइल में वाटर पोटेंशियल है -3 और इनके अंदर एसिड की वजह से पोटेंशियल सॉइल में से भी कम हो गया, लाइक -4. तो इसका मतलब यहां पर पानी ज्यादा सॉइल में, इनके अंदर वाटर कम, तो बना वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट. सो दे कैन इजिली एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस सॉइल विच हैज हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन. सो यू कैन सी हियर द सीफूड प्लांट्स, दे आर वेरी मच एवोल्यूशनरी एडवांस. कितने तरह का स्ट्रेस टॉलरेट कर सकते हैं. हाई टेम्परेचर स्ट्रेस, कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रेस, वाटर एज वेल एज सॉल्ट स्ट्रेस. सिर्फ एक स्ट्रेस टॉलरेट नहीं कर सकते, दैट इज लो टेम्परेचर स्ट्रेस, बिकॉज दे हैव एंजाइम विच इज सेंसिटिव टू लो टेम्परेचर. जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू विच इज दैट एंजाइम, दैट इज फॉस्फोपायरुविक डाइकाइनेज, जो एंजाइम पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप के अंदर कन्वर्ट कर देता है.
तो C4 पाथवे एक एवोल्यूशनरी एडवांस पाथवे है, और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस पाथवे के, दैट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Now, this is all about this lecture. In this lecture, I had discussed C3 pathway in detail, then photorespiration, and this was all about the C4 pathway. So in the next class, I will be starting with the last carbon assimilation pathway, that is CAM pathway. Thank you so much.